Okay, sir. Thank you, sir. देखिए, as far as the second physiology, the breathing was concerned, I already told you the chapter's name is Breathing and Exchange of Gases. Akanksha, are you there? Yes, sir. Okay, perfect. So as far as breathing and exchange of gases is concerned, Dr. Sayan Darbar, breathing is simply external respiration. यदि मैं बहुत ब्रीफ और बहुत नैरो लेवल पर यदि मैं जाऊं तो मैंने रेस्पिरेशन को I should divide in two steps. The one is external respiration and one is internal respiration. One is external respiration and one is internal respiration. External respiration, I'm talking about the breathing. Why I'm calling it as breathing? Because it is simply breathe in and breathe out, which is from external environment to lungs via nostrils and from lungs to external environment via the same part. So it is called external respiration. What internal respiration is? Siddhi, Sai, anyone? What is internal respiration? Oxidation. Perfect. It should be known as cellular respiration, or better to call as biological oxidation of food. Am I right? Biological oxidation of food, or I should say more technically the fuel. Biological oxidation of fuel. ये मैंने क्यों इधर पे अलग से लिखा, इसका जरूरत नहीं है भी अपने को लिखा. Simple respiration is external respiration and internal respiration. External respiration is breathing. That's it. And internal respiration is when the oxygen start burning that fuel, that is known as internal respiration. Or I should say the biological oxidation of fuel. That is far back. So that means मैं अभी आपको internal respiration तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं, because I already told you कि in case of plants and animal, the respiration or true respiration or the cellular respiration is same. This is absolutely same. This is not at all different, because आपका भी substrate, आपकी body का भी substrate doctors वही है जो plant के cell का substrate है. यानी आप मुझसे पूछेंगे कि उनके पास क्या fuel है, तो definitely वही fuel है, starch, carbohydrate, जो आप भी ले रहे हैं. So once it is converted to that glucose, and then oxygen start burning them, whether oxygen aerobically or anaerobically, whatever it is. This is respiration, true respiration, which is cellular respiration. Therefore, respiration we will deal in botany or in plant physiology, because plant do not breathe. Anyone? 11th, why plant do not breathe? Anyone? Because Anyone? they have no organs like us. They have so many organs. They have stomata. Do not They need have so to, many organs. They not. because they don't have the breathing organs like us. अरे भाई, they don't require at all. उनके पास नहीं है वाली बात नहीं है. They're in photos. उनके requirement नहीं है, because every part of that plant is capable to complete their requirement, to fulfill their requirement. हर पार्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का उसके पास अपना जरिया है, एंड दैट इज स्टोमेटा, लेंटिसेल्स. सो दे कैन कंप्लीट देयर. हमारे पास ऐसा नहीं है ना कि हमने विंडो से हाथ बाहर निकाला तो हमारी पूरी बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा या उस हैंड्स का भी पूरा हो जाएगा. सो वी डू नीड ब्रीथ एंड प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर. परफेक्ट. सो ब्रीदिंग में केवल, वैसे भी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं बाय डिफॉल्ट, तो मैंने बस आपको ये साइन बता दिया, commonly called as respiration, which can be an external respiration also. Sayan, you got it? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. No problem. So it's better to switch to the next part. Okay. So as far as breathing and exchange of gases, I hope visibility is clear. 11th. Yes, sir. yes, sir. Okay. There were 5 points. The first one was Evolutionary trend. Evolutionary trend.
एंड नाउ वी नो दैट कि लोअर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स क्या करते हैं, गिल्स कहां से शुरुआत होती है, बुक गिल्स बुक लंग्स क्या होते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स क्या करते हैं. द सेकंड वन वाज Anatomy. एंड स्ट्रक्चर. बट एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर जहां तक मुझे ध्यान है मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूं. If we talk about the respiratory, क्या लगता है रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग वाला जो पाथ है, ट्रैकियल पाथ, वो पीछे होगा कि आगे होगा? आगे होगा. आगे. मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो मैंने बना दिया ये पाथ. परफेक्ट. थोड़ा सा मैं बिट ज्यादा ले लेता हूं टू एक्सप्लेन. परफेक्ट. और ये वाला क्रॉस होकर जाएगा, और क्रॉसिंग कहां पर होगी? Pharynx. This common passage is what? Pharynx. Perfect. और यहाँ पर मैंने एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, कार्टिलेज स्ट्रक्चर बनाया था. What was that? Epiglottis. 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 Glottis. Perfect. यहाँ पर मैंने 3 कॉन की बनाई थी. Which one? Superior, middle and inferior. Middle and in. Middle con key and inferior con. It was for what? It was for To increase what? the surface area of To increase nasal cavity. Perfect. यहाँ पर मैंने एक projected structure बताया था which is dominant in male. Adam's apple. What was that? Adam's Adam's apple. इसका दूसरा नाम क्या बताया था? voice box. Perfect. 12th is it cartilaginous? 12th is it cartilaginous? Yes, sir. Yes, sir. Yes, it is larynx technically. हाँ? Yes, sir. It's technically larynx. Okay, fine. इसके बाद फिर हमने क्या किया था, इस ट्रैकिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, और उस ट्रैकिया को मैं कंटिन्यू यदि करूं तो that tracheal part was like this. 12th 11th from where it divides? T5. Fifth thoracic. T5. T5 के ऊपर यहाँ पर C-shaped structure. Okay. Yes, sir. Yes. What was this? Hyaline cartilage. Hyaline Hyaline cartilage. 12th वैभव, ये open posterior की anteriorly? Posteriorly. Posteriorly. Which lungs is quite bigger? Right side. Right. Right. Right side is quite bigger. Okay. This structure is what? Diaphragm. Diaphragm. This structure is known as? Medius. Heart. Heart. Mediastinum. Stinum. And where structure heart is located, that is cardiac. Cardiac notch. Perfect. Akanksha, I hope you understood. Yes, sir. Yes, sir. Be on mute. Everyone be on mute. Okay. Please be on mute. Fine. Akanksha Bhamre, be on mute. Okay. Now, there are 2 layers that covers the lungs. Anyone? Pleural membrane. Visceral and parietal. Parietal and visceral. Parietal pleura. And the inner one is? Visceral pleura. Pleura. Perfect. Perfect. Okay. यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था. That structure was epiglottis. Okay. Understood? Yes. Yes, sir. Perfect. Perfect.
So the next is from where it divides T5, thoracic fifth vertebra. Perfect. After that, Yes, it is sir. bilobed or trilobed? Trilobed. Trilobed. Simply, I should divide it in this way. Okay, 1, 2, and 3, and it opens into. It was started with primary bronchus. This is what Primary. primary bronchus. Primary bronchus, the secondary bronchus, then tertiary bronchus, and then ultimately what? Alveoli, bronchioles and alveoli. This is Alveoli. what? Alveoli. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this region is thoracic region. This thoracic region is under a cage. That rib cage has 12 pairs of ribs. 12 pairs of ribs. And out of this, first 7 pairs are 2 ribs. These, why they are 2 ribs? Because they are These, connected. They are why not they are 2 motor. ribs? vertebral column and They are attached to connected sternum. to sternum. Perfect. First, anteriorly it is attached to sternum. Anteriorly it is attached to sternum, and posteriorly it is attached to vertebral column. But the 8, 9, 10, the next 3 pairs attached to 7th one. वो 7 से attach हो जाते हैं. वो 7 से attach हो जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं false ribs. And again, 11th and 12th, they are not at all attached in anterior part. Posteriorly it is attached to vertebral column, so they called as floating bones. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Yes. यहाँ तक सभी को मैंने कंप्लीट बता दिया था और यहाँ तक अपना हो भी चुका था. आफ्टर दैट मैंने आपको एक आई शुड से ब्रैंक्यूल्स और ट्रैक्यूल्स में डिफरेंस बताया. ब्रैंक्यूल्स एंड ट्रैक्यूल्स, बिकॉज ये पूछा जाएगा आपसे. ब्रैंक्यूल्स एंड ट्रैक्यूल्स का डिफरेंस. एनीवन? मैं एक्सपेक्ट करूंगा 12th से ब्रैंक्यूल्स एंड ट्रैक्यूल्स का डिफरेंस. Sir, bronchioles. Bronchioles are air sacs and tracheoles are fluid filled. Perfect. Bronchioles are air sac. Perfect. Tracheoles are Fluid filled. Fluid filled. fluid filled. 11th लिखते चल रहे हैं. ब्रैंक्यूल्स जो है बच्चों वो एयर सैक है, ट्रैक्यूल्स जो है वो फ्लूइड फिल्ड सैक्स है. परफेक्ट. और जहां तक ब्रैंक्यूल्स की बात है, ये थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, है ना? कौन सी? Lecithin. कवर्ड विथ थिन मेम्ब्रेन. हालांकि 11th को भी कल की इमेज में मिल गया होगा वो. Am I right? 11th? Yes, sir. Yes, sir. Yes, very good. Lecithin ये क्या करता है? Just reduces the surface tension, है ना? इसीलिए ये हमेशा कैसे रहते हैं? Always Remain open. open. Perfect. Always open. और ये कैसे रहते हैं? Always Closed. closed. Perfect. ये किसमें देखने को मिलेंगे ब्रैंक्यूल्स आपको? Humans. Tracheoles is the character of Insects. okay. One more, the very important one. One more. Never penetrate the body. Perfect, Pratik. Very good. Never penetrate the body. Never penetrate the body. अब ये स्टेटमेंट यदि समझ में नहीं आया तो उसको ऐसे समझते हैं. नेवर पेनिट्रेट द बॉडी का मतलब बच्चों यहाँ पर तो स्पेसिफिक है ना, वो लंग्स में ही मिलेगा. वो स्पेसिफिक है, वो लंग्स वाले एरिया में ही मिलेगा आपको वो एल्वुलाई. लेकिन ट्रैकिया तो हर ऑर्गन तक खुद ही पहुंच जाता है ना. ट्रैकिया तो हर ऑर्गन तक खुद ही पहुंच जाता है, और हर ऑर्गन तक यदि खुद ही पहुंचा दैट मीन्स उसको क्या करना है? ऑर्गन तक पेनिट्रेशन करना है. तो ये पेनिट्रेट नहीं कर रहा है ऑर्गन्स को या पार्ट्स को, और वो पेनिट्रेट कर रहा है to supply the oxygen. यहां लिख देता हूं मैं penetrate. Perfect. 11th clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. अब एक और डिफरेंस मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा बच्चों. That is between larynx and pharynx. 12th expected. Larynx versus pharynx. 12th
pharynx has cartilages and larynx has some cartilage and a hyoid bone. Perfect. Pharynx has no cartilage. और इसके पास होता है हाइलीन कार्टिलेज, इसको जरूरत पड़ती है कार्टिलेज की. सानिका, वन मोर. So larynx has ciliated columnar cell epithelial cell, pharynx has stratified. Perfect. That is stratified squamous epithelia and one is ciliated columnar epithelia. 11th लिख रहे हैं. Point number 1, point number 2. Perfect. Any more difference? Pharynx is the part of both the respiratory and the digestive system, while larynx is the part of only the respiratory system. Very nice. Only the part of only respiratory. Am I right? Sahi. Part of only Yes, only the respiratory system. respiratory path. Whereas it is common for common passage for food and air. Sahi. Correct? Yes, sir. परफेक्ट. बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. 11th क्लियर हुआ? Yes, sir. Sir. गौरी, अरुणिता, डॉक्टर एमजे, डॉक्टर Yes, sir. दरबार. Clear. Yes, sir. परफेक्ट. Yes. डॉक्टर चोरडिया, प्रसन्ना, प्राप्ति, you got it? Yes, sir. Yes, sir. पलक, ओमकार, Yes, Yes, sir. sir. आयुष घुमरे, डॉक्टर एजी, अंडरस्टूड? डॉक्टर घुमरे, डॉक्टर आयुष घुमरे, डॉक्टर घुमरे इज नॉट देयर. ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताना है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं क्या ही कहूं उसको, लेकिन हम लिख जरूर लेते हैं, है ना. जो ह्यूमन लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स है, इसमें जो कार्टिलेजेस हैं, ह्यूमन लैरिंग्स किस किस से बना हुआ है पहले उसकी बात करते हैं, या मैं सिंपल बात कर रहा हूं आपको इसके कार्टिलेजेस. साउंड बॉक्स, कार्टिलेजेस ऑफ साउंड बॉक्स, कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स. प्लीज नोट विद मी. 12th, कैन यू हेल्प मी? 12th कितने Yes, होते sir. हैं टोटल नंबर? 9. 9. Sir, 9. विच वन? 9 पीसेस कैसे अरेंज होते हैं? 3 paired, 3 And 3 are unpaired. The unpaired. Perfect. Those they are 3 paired. तो उन पेयर्स टोटल जो 9 है उनकी यदि बात करें तो मुझे बनाने हैं केवल 6. यस. 12th. The first one is epiglottis. मैंने एक सीक्वेंस बताया था 12th. ETC, ACC. ETC, ACC. ETC and ACC. ETC and ACC. E for epiglottis, T for thyroid, C for cricoid. Cricoid. Thyroid and cricoid are 3. What, Unpaired. paired or unpaired? Unpaired. These are Unpaired. Unpaired. And what are the paired structures? Arytenoid, corniculate, Corniculate. Cuneiform. Cuneiform. arytenoid, corniculate, arytenoid, corniculate, and the last one is Cuneiform. cuneiform. 12th, visibility is clear. 11th, Yes, sir. 11th. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Instant answer expected from 12th. Instant answer. Epiglottis is which cartilage? Elastic. Elastic. Elastic cartilage. Thyroid is which cartilage? Hyaline cartilage. Hyaline cartilage. Cricoid is which cartilage? Hyaline Hyaline cartilage.
Carotenoid is which one? Hyaline plus More elastic. Hyaline plus Hyaline and elastic. Hyaline. Corniculate is what? elastic. Elastic. And cuneiform is what? Elastic. और 11 को मैंने कह दिया ये नीट का क्वेश्चन हो गया. Which cartilages are present in sound box or larynx? So याद कैसे रखोगे बच्चों? इसको याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक मैंने बताया, लाइक कल्लू पहलवान टाइप है ना, ETC ACC. अब जिसमें CC डबल आ रहा है वो पेयर्ड कर दिए मैं, तो याद रखने का तरीका हो गया 3 पेयर्ड 3 अनपेयर्ड. जो 3 पेयर्ड होगा तो ये हो गए 6 और ये हो गए 3 9. टोटल 9 कार्टिलेजेस आर देयर, जिसमें पहले 3 हो गए अनपेयर्ड एंड रेस्ट 3 आर पेयर्ड. सो रेस्ट 3 पेयर्ड हो गए तो 3 और 3 6 और ये 3 9. तो इस तरह से कार्टिलेजेस आते हैं और इन सब में थायराइड और क्रिकॉइड ये पूछा जाता है. तो थायराइड और क्रिकॉइड दोनों ही अनपेयर्ड हैं और दोनों ही हाइलीन कार्टिलेजेस हैं. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, परफेक्ट परफेक्ट. अब इसमें एक चीज जो थोड़ी सी मुझे आपको बतानी है वोकल कॉर्ड को लेकर, नोट करके हम लोग लिख लेते हैं. vocal cord. 12 how many pairs? 2 pairs. 2 pairs. Pairs of folds. Which are those? Which are those? Upper and lower. Upper falls there. Upper false की true. False. True pair. Perfect. Now, which is this vocal cord is? What is the difference between male and female? Thicker and larger in male. Thicker, उससे क्या फर्क पड़ेगा प्रतीक? सर टेंशन कम होगा, More surface area. वाइब्रेट मोर होगा. यदि थिकर और लार्जर है 11 बात को समझिएगा. यदि बच्चों ये थिकर और लार्जर है मेल में, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल. थिकर एंड लार्जर इन मेल, सो फर्क क्या पड़ेगा? इट विल वाइब्रेट स्लोली. डॉक्टर एमजे, डॉक्टर आयुष, Yes, sir. पलक, स्पंदन, स्पंदन. Yes, sir, understood. यदि थिकर है लार्जर है तो डेफिनेटली वो वाइब्रेट कैसे करेगा? थोड़ा स्लो करेगा. और इसीलिए क्या होगा? इसीलिए टेंशन कैसा होगा? टेंशन विल बी लो. टेंशन विल बी लो क्योंकि वाइब्रेट स्लोली कर रहा है. और जब टेंशन लो है तो साउंड का पिच कैसा होगा? Low. लो. साउंड पिच इज लो. 11 आया समझ में? Yes, Yes, sir. yes. कि क्यों गर्ल्स का पिच हाई होता है और बॉयज का पिच साउंड का पिच लो होता है? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से कि जो वोकल कॉर्ड है उसमें वो थिकर और लार्जर है मेल के केस में, और थिकर और लार्जर होने की वजह से दैट वाइब्रेट स्लोली. और वाइब्रेट स्लोली करेगा डेफिनेटली टेंशन कम आएगा. टेंशन कम आएगा तो पिच लो होगा. 11 अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. सर हाँ बोलिए. सर वाइब्रेट ज्यादा करेगा ना, लेकिन वाइब्रेट क्यों ज्यादा करेगा? सर टेंशन लो है ना. तो इस भाई मेरे हिसाब से प्रतीक यदि थिकर और लार्जर है, टेंशन की तो बात अभी सोच सकते हैं अपन, लेकिन थिकर और लार्जर यदि है तो वाइब्रेट तो कम करेगा. हाँ वो पतला होता तो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, ऐसा मेरा मानना है. तो वाइब्रेशन वाली बात तो आई एम एब्सोल्युटली अग्री कि वो यदि थिकर और लार्जर है तो वाइब्रेट तो स्लो करेगा. अग्री? यस सर. अब रहा सवाल टेंशन का, तो इस पर मैं डिस्कस कर सकता हूं आपसे कि वाइब्रेट यदि वो स्लो हो रहा है तो टेंशन कम आएगा कि ज्यादा आएगा? मेरे हिसाब से टेंशन कम आएगा, क्योंकि यदि वो ज्यादा वाइब्रेट हो रहा होता या फास्ट वाइब्रेट हो रहा होता तो वो ज्यादा टेंशन के साथ होता, ऐसा मुझे लगता है. प्रतीक, एनी डिस्कशन यू नीड?
सर लेकिन हम ज्यादा पुल करेंगे तो वाइब्रेट कम होगा ना, उसकी एम्पलीट्यूड कम होगी ना। अगर हम थोड़ा लूज छोड़ेंगे तो वाइब्रेट ज्यादा होगा। अग्री अग्री जस्ट मिनट दीपक सर मैं क्लास में करूं। हाँ, ऐसे समझते हैं दोस्त कि यदि हमने किसी एक ऐसे सरफेस एरिया को लिया, मैं अभी डस्टर मेरे पास नहीं है, चलिए एक ये बॉक्स मेरे पास रखा हुआ है मार्कर बॉक्स, इसकी ये थिकनेस है, और दूसरा मैंने ले लिया एक, ये लार्जर है हालांकि थोड़ा सा, लेकिन नो प्रॉब्लम, आई टेक दिस वन। प्रतीक, दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स। यस सर। अब मुझे बताइए कौन ज्यादा वाइब्रेट करेगा विद द सेम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सर वो आपके राइट हैंड वाला। मतलब स्मॉलर वन, राइट? हाँ सर। मतलब मेरा कहने का मतलब कि यदि सेम इंटेंसिटी का साउंड दोनों को दिया जाता है, क्योंकि मैं तो वो बात कर रहा हूं ना कि सेम टाइप ऑफ इंटेंसिटी, अब दोनों पर इंटेंसिटी सेम पड़ती है तो ये ज्यादा वाइब्रेट होगा। अग्री? यस सर। अब ये ज्यादा वाइब्रेट होगा तो टेंशन किस पर ज्यादा आ रहा है? उसी पे आएगा फिर। टेंशन का मतलब यहाँ फोर्स है। अब ये सही है कि ये धीरे धीरे खींचेगा तो ज्यादा खींच जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अपन इन टर्म्स ऑफ एनाटॉमी यदि बात करें तो ये डेफिनेटली ज्यादा ही करेंगे, और इसलिए इनका साउंड का पिच जो है हाई जाएगा। और हाई जाने का मतलब देखो वो भी मैं बताता हूं कैसे स्ट्रेन। जो सारेगामा पदनिसा वाली बात होती है उसमें जितना अच्छे से, जितना खूबसूरती से गर्ल्स लोअर नोट से हायर नोट तक जा सकती है, उतनी खूबसूरती से टेक्निकली बाय डिफॉल्ट मेल नहीं जा सकता। अब एक अलग बात है कि किशोर कुमार साहब ने उसको उस लेवल तक ले गया था, दैट इज द प्ले ऑफ प्रैक्टिस। अग्री? यस सर। परफेक्ट। 11th अग्री? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। Yes, sir. सो ये एक बहुत बढ़िया नीट का स्टेटमेंट हुआ। अब मैं सेम टाइम पर 12th से ये भी एक्सपेक्ट करूंगा, क्या लगता है ये पूरी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो प्रोसेस है, जिससे कि मैं ब्रीदिंग कह रहा हूं, इन इज व्हाट इंस्पिरेशन, आउट इज व्हाट एक्सपिरेशन। दिस इज एक्सपिरेशन एंड दिस इज इंस्पिरेशन। in breathe in is inspiration, breathe out is expiration. So this in and out वो मैकेनिज्म समझ, उस मैकेनिज्म में इंस्टेंट आंसर एक्सपेक्टेड होगा। पहले मैं 12th को 11th को समझाता हूं। स्टेटमेंट इज क्लियर माय डियर? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों, डॉक्टर स्वराज नेरकर, स्वराज, सानिया, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. पूरा ये जो पूरा पार्ट हुआ बच्चों, बोर्ड पर लिखा गया है, ये सेकंड पार्ट हुआ आपका एनाटॉमी स्ट्रक्चर, है ना? थर्ड पार्ट वाज व्हाट? थर्ड वाज व्हाट? Mechanism. Mechanism. मैकेनिज्म की यदि बात करते हैं तो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को पहले मैं ये क्लियर करूं, फिर मैं स्ट्रक्चर पर आऊंगा। रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, इसको मैं मिटाता हूं फिर नए पेज से शुरू करेंगे। बट रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म में मैंने आपको बता दिया कि मुझे केवल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ाना है, ना कि इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन विल बी द पार्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक्सप्लेन्ड इन प्लांट फिजियोलॉजी। परफेक्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे यह समझ में आया कि रेस्पिरेशन का मेरा सीक्वेंस बस मैकेनिज्म इतनी है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू लंग्स। Am I right? Am I right? Yes, sir. Better to write in this way: external environment to lungs, lungs to heart. Agree? Lungs to heart and heart to organs. Everyone agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. क्या जाएगा बच्चों? कौन सी गैस जाएगी? Oxygen. ऑक्सीजन। ऑर्गन विल यूटिलाइज बाय द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ऑर्गन में पहुंचने के बाद वहां पर होगा ट्रू और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ऑर्गन में पहुंचने के बाद, which is not the part of our discussion today only. This
organ will produce what? Which gas? Carbon dioxide. Carbon dioxide. It comes to heart will give to what? Lungs, and lungs will come to CO2 outside. Agree? So definitely इसको यदि मैं दूसरे कलर के पेन से बच्चों कुछ बनाना चाहूं तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि all this process, यहां से यहां तक का process, this process till lungs, this one is inspiration and this one is expiration. 11th, agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. One is inspiration and one is expiration. Perfect. But anyone 12th, can you tell me what this pathway is? 12th? Systemic circulation. Oh, Pulmonary Pulmonary circulation. please क्या ही कर रहे हो? This is what? Pulmonary Pulmonary circulation. circulation. This is pulmonary circulation. Pulmonary circulation. 11th इसको थोड़ा समझ में आए क्यों मैंने पल्मोनरी कहा बच्चों? लंग्स और हार्ट के बीच दो सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन. सिस्टेमिक सर्कुलेशन हार्ट टू सिस्टम, सिस्टम टू हार्ट. पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स. यानी मैं थोड़ा सा इसको कैमरे को पीछे यदि करूं तो आपको ज्यादा बेटर दिख पाएगा. यस, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन and this one is heart to organ and organ to heart. This one is what? Systemic. This one is what? Systemic. Systemic circulation. Systemic circulation. 11th is you are writing, I hope. मैंने आपसे कहा बच्चों external environment to lungs, lungs to heart, heart to organs. When it in external environment to lungs, it is inspiration and expiration. Then it is pulmonary, lungs to heart, heart to lungs. And then after it is systemic circulation, heart to organ, organ to heart. 11th is Shreyas Paitane, Gitesh, Swanandi, Ishita, understood? Yes, Yes, sir. So I'm sharing this image, and then I'll erase this. Yes, सिस्टमिक का मतलब ये होता है, मैंने आपसे कहा कि दो चीजों, एक okay, am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. कि मैंने ये कहा बेटा, जब आप ब्रीदिंग करते हैं, जैसे ही ब्रीदिंग किया तो लंग्स तक जाएगी. गार्गी, am I right? Yes. This is breathe in, or I should say inspiration. फिर लंग्स से ब्लड में डिफ्यूज होके हार्ट को जाएगी. Am I right? Yes. This is called as external respiration again. Perfect. Okay. लेकिन जो sorry, lungs to heart जो जाएगा, that is pulmonary circulation. क्योंकि लंग्स से वो हार्ट को जा रहा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, लेकिन लंग्स को है तो उसे कह दिया मैंने पल्मोनरी. और जब हार्ट ऑर्गन को डिलीवर करेगा O2 और ऑर्गन हार्ट को डिलीवर करेगा CO2, तो उन दोनों के बीच का कनेक्शन मैंने कह दिया, that is what? Systemic circulation. So if heart to system or system to heart, it is systemic. When it is lungs to heart or heart to lungs, it is known as pulmonary. Gargi, understood? Yes. Perfect. Should I erase this? Everyone, should I erase this?
Yes, sir. Yes, sir. Capillaries. Yes. Any doubt to anyone? Any doubt to anyone? No, sir. Perfect. कार्टिलेजेस आपसे 100% पूछे जाएंगे नीट में, और अच्छे अच्छे धुरंधर उसमें फिर गलती कर देते हैं क्योंकि सब एक जैसे कार्टिलेज लगने लगते। गलती को तो मैं ये सलाह दूंगा कि कहीं पर भी ऑप्शंस पहले ना देखें, पहले अपना आंसर जनरेट करें, क्योंकि जब वो देखने लगता है तो एरेटिनॉइड, क्रिकॉइड, पायरेट सब एक बराबर लगने लगता है। सो प्लीज जनरेट योर आंसर फर्स्ट, देन ओनली गो फॉर ऑप्शंस। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज mechanism of breathing. Mechanism of breathing. I hope audibility and visibility is clear. Mugdha, Yes, sir. Samisha, Yes, sir. Yes, sir. ब्रीदिंग की भी बात बच्चों करो तो कुछ स्टेप्स मैं देखता हूं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कहीं पर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, है ना, क्योंकि आपको भी ये सोचना है कि क्या हम सही जा रहे हैं। तो सबसे पहले यदि मैं मैकेनिज्म ब्रीदिंग की बात करूं तो इनहेलेशन। एवरीवन अग्री? Yes, sir. मतलब इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एटमॉस्फेरिक O2 comes to lungs. Am I right? Am I right? Yes. Yes, sir. Perfect. सेकेंड वन की भी बात करते हैं प्रसन्ना मैडम। तो इनहेलेशन हो गया, अब क्या लग रहा है कहाँ जाएगी ऑक्सीजन? Exhalation. ना, अरे कैसे एकदम से एक्सेलेशन हो जाएगा? No, sir. Lungs. Diffusion of O2 into, भाई अभी आपने ले ली, लंग्स तक आ गई, अब लंग्स से ब्लड में जाएगी ना, तब तो Yes, हार्ट sir. को पहुंचेगी। डिफ्यूजन ऑफ O2 into ब्लड, अग्री? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या लग रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ HbO2 और ब्लड ना टू हार्ट, अग्री? Yes, sir. Perfect. But I should star mark it because this is not the part of breathing. ये तो एक और दूसरी फिजियोलॉजी है। कौन सी? Circulation. सर्कुलेशन। उसका मुझे मैंने स्टार लगा दिया, मैं उसमें काउंट ना भी करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट। बट एनीवेज, पॉइंट 4, क्योंकि आर्टरीज ले जाएगी कि वेन्स लाएगी, O2 कौन ले जाएगा, CO2 कौन लाएगा, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। हाँ, वो कैसे ले जाएगा दैट इज द पार्ट ऑफ डिस्कशन, सो आई मेंशन्ड HbO2। परफेक्ट। अभी हार्ट तक पहुंच गया, और हार्ट से क्या होगा, ऑर्गन तक जाएगा, है ना, उसको भी मुझे यहां लिखने की जरूरत नहीं, ये पार्ट तो भी एक बार मैं कंसीडर कर लूं, बट हार्ट टू ऑर्गन तो वो बिल्कुल कंसीडरेशन का पार्ट ही नहीं है। हार्ट से ऑर्गन तक पहुंच गया, मैंने इसको लिख दिया हार्ट टू ऑर्गन को कंसीडर करते हुए, चलो लिख दो हार्ट टू ऑर्गन्स व्हिच इज प्योरली विद सर्कुलेशन, Systemic. Systemic recirculation. Circulation. अब ऑर्गन तक पहुंच गया तो क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 इनटू टिश्यू और सेल, अग्री? जहां तक जाना था वहां Yes, तक पहुंच गया। परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए, अब वहां से जब ये डिफ्यूज O2 अंदर हो गया तो वहां से क्या बाहर आएगा? Carbon dioxide. Carbon dioxide. ब्लड।
into tissue from blood, into tissue from blood, or into blood from tissue. Agree? Yes. Vedant, Shreyas, Gitesh, Yes, sir. Shruti, Yes, sir. Sumani. Yes, sir. Yes, sir. कार्तिकी गायकवाड़ तो सुनी नहीं रही है. तन्वेश, स्वप्निल बरडिया. Yes, sir. Perfect. शुभम रोथे. Next one. Anyone can tell me next क्या expect होगा आपको? क्या लिखूंगा मैं अब? क्या लिखूंगा? CO2 from organs The to transport of heart. carbon dioxide blood into lungs. CO2 from CO2 और blood. I should say CO2 and blood. जैसे अपन ने O2 और blood लिखा था वहां CO2 and blood. गायत्री कहां तक आएगा? Lungs. Heart. Heart. उसी सिस्टम से वापस चलते हैं जिस सिस्टम से चले थे. नेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगा? हार्ट टू Lungs. लंग्स. चलिए भाई लंग्स तक आ गया. अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? Diffusion of CO2. Sir, from lungs to diffusion into environment. Diffusion. Of CO2 from blood to alveoli. Agree? Yes. And 10th क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? Exhalation. Exhalation. Everyone must be agreed. यहाँ लिखा था atmosphere O2 comes to lungs. यहाँ लिख दिया CO2 moves out to external environment. I hope everyone is agree with this. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. अब मुझे इसमें जो आपको बताना है कहां पर ब्रीदिंग है और कहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है. इसलिए तो चैप्टर का नाम समझ में आ गया. ब्रीद इन यानी पहली स्टेप में बताऊंगा इनहेलेशन कैसे होता है. फिर मैं बताऊंगा डिफ्यूजन कैसे होता है which is exchange of gases. फिर तीसरा ट्रांसपोर्टेशन की तो बात ही अपन नहीं करेंगे. फिर डिफ्यूजन O2 टिश्यू को कैसे मिलती है, टिश्यू CO2 कैसे देता है. इसको यदि मैं डायग्रामेटिकली बताना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यहां से आया लंग्स और लंग्स का स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरह से बना दिया जो कि एल्वेलाई है और इसके चारों तरफ बनी हुई है ब्लड कैपिलरीज. इसको मैंने लिख दिया ब्लड कैपिलरीज. तो लंग्स में आई है ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू ब्लड. ये तो बीच का फ्लूइड है, ये तो बीच में फ्लूइड कहने की वजह लेयर है. इट्स नॉट आई शुड से फ्लूइड, बीच के लेयर है. परफेक्ट. आई होप डायग्राम इज गेटिंग. डॉक्टर मंत्री. Yes, sir. Dwaltis, can you tell me the diameter of this or the thickness of this layer? Less than a millimeter. Dwalti, less than a Millimeter. millimeter as per the NCERT. Okay, so O2 यहाँ डिफ्यूज हो गया बच्चों ब्लड में और यहां से चला गया किसके पास? ऑर्गन, आई शुड से टिश्यू और आई शुड से सेल. यहां पर कौन डिलीवर हो गया? O2. यहां से क्या वापस आएगा? CO2. तो किस में आएगा? ब्लड में. और ब्लड से कहां जाएगा? लंग्स में. और लंग से कहां जाएगा? Understood? 11th is understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने आपको स्पंदन मैडम, स्पंदन, am I audible डॉक्टर? Yes, sir. Yes. स्पंदन 3 चीजें बतानी है. सबसे पहली चीज बतानी है मैकेनिज्म नंबर 1 जिसे मैं कह रहा हूं A, which is what? Inhalation. ये मैं आपको बताऊंगा.
नंबर 2 में आपको बताऊंगा यहाँ पर डिफ्यूजन, इसको मैंने कह दिया नंबर 2 यानी बी। अग्री? अग्री? Yes, sir. Yes, sir. सेम टाइम CO2 जा रहा है तो इसको भी मैं एक साथ ही बताऊंगा, तो इसको भी मैंने कह दिया बी, क्योंकि जब ये बताऊंगा तो सेम टाइम में रिवर्स प्रोसेस बताऊंगा। परफेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. बीच का कोई पार्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ कैसे डिफ्यूजन होता है। दैट इज व्हाट सी, आई शुड से ये एक्सचेंज किस फॉर्म में होता है, यहाँ पर मैं बताऊंगा फॉर्म्स, किस फॉर्म में एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन कैसे जाएगी और CO2 कैसे जाएगी, तो ये फॉर्म्स में आपको बताऊंगा। दैट विल बी सी एंड डी पार्ट विल बी कि कैसे O2 इसमें डिफ्यूज होता है और सेम टाइम डी पार्ट की कैसे इसमें CO2 डिफ्यूज आउट होता है। जो फॉर्म CO2 है और O2 कैसे आते जाते हैं वो अपन देखेंगे। O2 का ट्रांसपोर्टेशन 2 तरीके से होगा, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीके से होगा। 12th, कैन यू टेल मी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 In the form of oxygen. Bicarbonate. HbO2 And and plasma. dissolved, और CO2 कैसे जाएगा 12th? Bicarbonate. Bicarbonate. Plasma. Plasma. Bicarbonate, HbCO2 and dissolved. परफेक्ट। क्या आप मुझे कोई बता सकते हैं डॉक्टर क्षीर सागर, बाइकार्बोनेट से कितना परसेंट जाएगा? 70%. 70%। परफेक्ट। HbCO2 कितना जाएगा? कार्बन हीमोग्लोबिन 25%. 23। एंड डिसॉल्व कितना जाएगा मुस्कान मैडम? 7%। परफेक्ट। 11th, मैं कुछ भी नहीं लिखा, कुछ डेटा मैंने दिया इंफॉर्मेटिव। अब मैकेनिज्म पर आता, अब मैं मैकेनिज्म पर आता और बात को समझते हैं। यहां तक नोट कर लिया 11th? Sir, Yes, noting. sir. Yes, sir. प्लीज नोट। चलिए बढ़े आगे। Yes. परफेक्ट। अब पहले एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। बच्चों, जब भी इनहेलेशन की प्रोसेस होगी तो कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी वो समझ। जब भी इनहेलेशन की प्रोसेस होगी तो वहां पर कुछ 3-4 मसल्स इन्वॉल्व होगी। नंबर 1 विल बी डायफ्राम, अभी अपन ने डायग्राम मिटा दिया। नंबर 1 विल बी डायफ्राम। नंबर 2 विल बी इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स नाम ध्यान रखिएगा, विच इज ऑफ 2 टाइप, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। रिपीटिंग, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो टोटल 3 हो गई। नंबर 1 इज डायफ्राम, नंबर 2 is internal intercostal muscle, number 3 is external intercostal muscle और नंबर 4 is abdominal muscle। नंबर 4 is abdominal muscle, यानी टोटल 4 मसल्स मैंने इन्वॉल्व। बात को समझिए, मैं लिख देता हूं पहले ताकि आपको मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। Which one? क्या बताई पहले मैंने? 11th? Diaphragm. Diaphragm. Number 2? Internal intercostal muscle. Internal intercostal muscle. Number 3? External intercostal External. muscle. External intercostal muscle. Perfect. और number 4? Abdominal muscle. Abdominal muscle. अब बात को समझना और अग्री हो तो ही हाँ बोलना। मैंने आपसे कहा जैसे क्रिकेट में आप लोगों ने विकेट कीपर के ग्लोव्स देखे हैं, हैंड ग्लोव्स विकेट कीपर के? Yes, sir. Yes. और बैट्समैन के भी देखे।
और बैट्समैन के भी हमने देखे, am I right? Yes, sir. Yes. There is a difference. There is a difference. What is that? What is that? Sir, in wicket keeping, the thumb and the index finger, there is a joint. There is a joint. Perfect. यानी कहीं ना कहीं इनके बीच में जो जॉइंट होता है वो आपको बैट्समैन केस में नहीं मिल रहा है, उसमें सारी फिंगर्स फ्री हैं। तो ऐसा ही एक रीप केज को कंसीडर करना। इस रीप केज के बीच में यहां पर जो फ्लैप्स लगे हुए हैं उसको मैंने कह दिया इंटरकॉस्टल मसल। एक अंदर से है, एक बाहर से। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब ये समझिए कि मैंने आपको अंदर और बाहर बता दिया, वो आड़ी और खड़ी वाली बात, बट अभी समझने के लिए ऐसे समझिए कि रीप केज है, रीप केज में मसल्स लगी हुई हैं रीप्स के बीच में, दैट इज इंटरकॉस्टल मसल्स, और वो मसल्स एक्सटर्नल भी हैं और वो मसल्स इंटरनल भी। एक डायफ्राम सबको पता है जो नीचे की तरफ है, इंटरकॉस्टल मसल बीच की तरफ है, और एब्डोमिनल तो एब्डोमेन में। अब मेरी बात को समझना और ध्यान से इन चीजों को अप्लाई कर। मैंने आपसे कहा व्हेन आई एम ट्राइंग टू इनहेल, जो नॉर्मल कोर्स में एब्डोमेन होता है वो एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट होता है। रिलैक्स पोजीशन में तो वो हमेशा पड़ा हुआ है। रिलैक्स पोजीशन में कैसा पड़ा होता है डायफ्राम? लाइक दिस पोजीशन इज व्हाट? रिलैक्स पोजीशन। दिस पोजीशन इज व्हाट? रिलैक्स पोजीशन। Relax. When I try to inhale, this comes into contract position. This comes into contract position. वो contract होता है। अब जब वो contract होगा बच्चों ध्यान से सुनना एकदम पेन डाउन करके। When it gets contracted, जैसे ही वो contract होगा तो definitely ये डोम शेप जो था ये नीचे की तरफ आ जाएगा और सी शेप हो जाएगा। अग्री? Yes, sir. So what I expect कि at that moment when diaphragm contracts, this intercostal muscle will also get changed. And when diaphragm contract, sunna, when diaphragm contract, then external intercostal muscle also contract. When diaphragm contract, external intercostal muscle also contract. But at the same time, since external and internal intercostal muscles are antagonistic muscles, यदि एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एक रिलैक्स, दूसरी रिलैक्स हुई तो पहली कॉन्ट्रैक्ट. So when diaphragm contract, external intercostal muscle also contract, therefore internal intercostal muscles relax. Perfect. And when internal intercostal muscle relax, the volume of thoracic cavity increases. Like ये ऐसा पड़ा था, जैसी रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन की बात आई ये फूल गया. और इसीलिए तो रीप केज में 11th और 12th पेयर आपको फ्लोटिंग दिया ताकि वो जैसे फूलेगा, नहीं तो ये टूट जाएगा ना. लास्ट वाला ये रीप केज क्यों अटैच नहीं किया गया है 2 पेयर्स, अदरवाइज ये फूलेंगे कैसे. यू गॉट माय पॉइंट? कैन यू सी मी ऑन स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. दैट मीन्स ये जो पार्ट था, ये जो रीप केज था, ये रीप केज की ये जो दोनों लास्ट वाली दी गई है जस्ट फॉर एक्सपांशन. अदरवाइज ये भी कहीं पर ज्वाइंट हो जाती तो यदि आप सांस ज्यादा तेजी से अंदर लेते तो वो टूट जाता है ना. तो रिपीट कर रहा हूं, व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, मेरे साथ बोलेंगे ड्यूरिंग, मैं पहला लिख रहा हूं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले क्या होगा? डायफ्राम Contract. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट. और इसके साथ एक और ऐड कर देता हूं. पहले डायफ्राम का एंटागोनिस्ट कौन? एब्डोमिनल मसल. तो एब्डोमिनल मसल रिलैक्स सो दैट एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल Will contract. Contract. so that internal intercostal Relax. so that volume of thoracic cavity Increase. thoracic cavity increases. now सोचिए ना, वॉल्यूम बढ़ गया और एयर कम, वॉल्यूम बढ़ गया और एयर कम. तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो एयर अंदर आएगी ना.
Yes. भाई जब वॉल्यूम बढ़ गया, स्पेस ज्यादा हो गया, एयर कम हो गई, तो उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से एयर आएगी। डॉक्टर एमजे, Yes, sir. therefore O2 rush in. This is called what? Inhalation. Gargi, please check, and if any doubt, then ask me. Anyone can ask me. Gayatri, Yes. any doubt? No, sir. No doubt. Perfect. So, मैं जिससे पूछूं, विधिशा, वैष्णवी देशमुख, वैष्णवी, क्या आप मुझे एक्सपिरेशन की प्रोसेस बता सकते हैं? Yes, sir. ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, विधिशा, Yes, sir. क्या मुझे बता सकते हैं? व्हाट विल हैपन फर्स्ट? Diaphragm relax. Diaphragm relax. Very good. Diaphragm relax. Next, Vidhi. Abdominal contract. Contract. Perfect. Abdominal contract. Perfect. External intercostal. Relax. Relax. External intercostal relax. Internal intercostal. Contract. Contract. Internal intercostal contract. And volume of thoracic cavity. Decrease. Decreases. अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यार, तो एक स्क्वीज प्रेशर लग जाता है। वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो यहाँ स्क्वीजिंग प्रेशर लगेगा। जैसे ही प्रेशर लगेगा, पॉजिटिव प्रेशर, उस पॉजिटिव प्रेशर से बची हुई एयर बाहर निकल आएगी। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों में पॉजिटिव प्रेशर कौन सा था और नेगेटिव प्रेशर कौन सा था? Inhalation. It is negative. And this one? Positive. Everyone agree दोस्तों? Yes. परफेक्ट। प्लीज चेक, और कहीं पर भी डाउट आ रहा तो बताइए। याद करने का तरीका भी बता, याद करने का तरीका भी बताता हूं। याद करने का तरीका ये है, क्या आपने एक पॉइंट नोट किया कि डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल आर अपोजिट मसल्स? Yes, sir. Perfect. And same time, external intercostal muscle and internal intercostal muscle are also opposite in nature. Perfect. Shweta Gavli, Shubham Rothe, Yes, sir. understood? Shubham Rothe, Yes, sir. okay. Shreya Bade, Shweta Gavli, Yes. Swani Shajed. Yes, sir. परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए, तो आगे बढ़ने के पहले एक याद रखने का तरीका मैं बताऊं। जब आप बच्चों इंस्पिरेशन कर रहे हो, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का पहला वर्ड क्या है? पहले अल्फाबेट IN, इन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इज इट? sir. इसमें इंटरनल विल बी रिलैक्स। देखिए ध्यान से, इंटरनल विल बी रिलैक्स। देखो ध्यान से, अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्सपीरेशन कर रहे हो तो इसका पहला अल्फाबेट क्या है? EX। तो इसमें कौन रिलैक्स? External intercostal. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल विल बी। भाई इंटरकॉस्टल मसल तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है, इंटरकॉस्टल मसल तो रिलैक्स भी हो रही है, लेकिन कौन सी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल? इंटरनल इंटरकॉस्टल या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल? तो उसको याद रखने का तरीका, तो उलझेगा ही नहीं आदमी। भाई शुरुआत में ये तो सबको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारे सीक्वेंस इसके हिसाब से चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, कुछ रटने का जरूरत नहीं। जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमें ये पता है कि नॉर्मल पोजीशन में ऐसा वो डोम शेप रहता है, नॉर्मल इसमें वो डोम शेप रहता है। वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे आएगा, वो जैसे ही नीचे आएगा तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो ऑक्सीजन अंदर आएगी बाय डिफॉल्ट। तो मैंने बस वो बताना है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, उसके अपोजिट कौन है? एब्डोमिनल, वो रिलैक्स।
और चूंकि इनहेलेशन की बात है, इंस्पिरेशन की बात है, तो इंटरनल विल रिलैक्स। तो जाहिर सी बात है इसकी अपोजिट, एक्सटर्नल विल बी कॉन्ट्रैक्ट। वेयर इज इन केस ऑफ एक्सपीरेशन, एक्सटर्नल इज रिलैक्स, external is relaxed, so by default internal intercostal will be contract. 11th is understood. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For the same purpose, I am sharing a diagram. I am going to share a diagram. तब तक मैं 12th से बात करूं। 12th क्या मुझे बताएंगे? During inspiration, सही, अनया, सानिका, are you there? Yes, sir. मुस्कान, प्रतीक, कौस्तुभ, नरेश, शेख, are you there? Yes, sir. Yes, हाँ सर। मुझे बस इतना बताइए कि जब इंस्पिरेशन होगा तब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. what will be the direction of increase? Anterior posterior or posterior anterior? Anterior posterior. एंटेरो पोस्टेरियर। अब ये 11th को थोड़ा समझना पड़ेगा, सोचिए और मुझे बताइए कि ऐसा क्यों। और यदि मैं आपसे कहूं कि थोरेसिक चैम्बर का डायरेक्शन एंटेरो पोस्टेरियर बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो स्टर्नम है, स्टर्नम जो है वो वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ाएगा प्रतीक? सर वो dorsiventral. Dorsoventral axis. Dorsoventral axis. Is going to share a screen. Eleventh is till then check. कोई डाउट हो तो अभी बताइए बच्चों। Can you see the screen? Yes. 11th is. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज चेक, क्या हमने बताया हुआ सही हो रहा है क्या? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नीचे की तरफ आ रहा है। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. When diaphragm contract, it comes to the downward side. Perfect. जैसे बच्चों वो नीचे की तरफ आया, रिब्स और स्टर्नम देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे डायफ्राम नीचे आएगा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा और वो रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ रेज होगा, जिसको अभी आपके सीनियर्स ने 12th ने बताया कि जब वो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो दैट इज एंटेरो पोस्टेरियर, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। परफेक्ट। और इसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम हो गया ज्यादा, एयर हो गई कम, तो तेजी से एयर एंटर कर जाएगी, विच इज आवर रिक्वायरमेंट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. मैंने वहां लिख भी दिया डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके साथ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल भी कॉन्ट्रैक्ट होती है और एब्डोमिनल रिलैक्स होती है और इंटरनल इंटरकॉस्टल भी रिलैक्स होती है। तो एब्डोमिनल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल आर सिनोनिमस और आई शुड से पैरेलल मसल्स, जबकि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ये भी साथ काम करते हैं। ये दोनों उन दोनों के एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। Same if I can show you this one. In this structure, diaphragm relaxed, so it moves to attain the basic position and basic nature, that is in the dome shape. When it comes back to dome shape, ऐसी बात है, the pressure will be positive. Ribs and sternum return to their original position. Volume of thoracic cavity decreases. So there will be a positive pressure.
that is enough to expel out the air from the lungs. 11th is understood? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. I think this structure is not to share you because it is given in your NCERT. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay. बस आपको मसल्स का इंटरनल एक्सटर्नल वो समझ में आना चाहिए था. That was more important. And I hope you understood this. चलिए, अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब मुद्दे पर आते हैं. ओवरऑल मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी. अभी मैंने मैकेनिज्म सिर्फ आपको बताई गायत्री मैडम. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू लंग्स. अभी मेरा ए पार्ट कंप्लीट हुआ. यू अग्रीड विथ ए? एवरीवन अग्रीड विथ ए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we are switching to B part. Now we are switching to B part. कि कैसे ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कैसे CO2 ब्लड से लंग्स में आती है. That is our B part. This A part is, I hope it's done. A part is done. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. B part के लिए केवल और केवल एक खेल है important. That is for B part. What is that? What is that? Partial pressure. Please note partial pressure. 12th, what is the definition of partial pressure? Pressure of an individual Balti. gas in a mixture of gas. Perfect. Pressure of a gas. Pressure of a gas in a mixture of gases. In a mixture of gases. जब बहुत सारी गैसेस किसी का एक मिक्सचर रखा हो बच्चों, तो उस पूरे मिक्सचर में एक किसी गैस का अपना खुद का प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर. किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक का अपना खुद का प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर. लाइक मैंने आपसे कहा एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं. एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं. उन गैसेस में ऑक्सीजन का अपना प्रेशर दैट इज पार्शियल प्रेशर. हमारे लंग्स में सारी एयर अंदर जा रही है, O2 हो, CO2 हो, नाइट्रोजन हो एंड व्हाट नॉट, लेकिन उसमें भी जो ऑक्सीजन का अपना प्रेशर है दैट इज पार्शियल प्रेशर. ब्लड में हमारी गैसेस O2 CO2, उन दोनों के मिक्सचर में O2 का अपना प्रेशर पार्शियल प्रेशर, CO2 का अपना प्रेशर पार्शियल प्रेशर. यानी इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस किसी एक गैस का अपना प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर. सायन, गायत्री, स्पंदन, agreed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And it is represented by, doctors, it is represented by either PO2 or it is represented by PCO. PO2 and PCO2. PCO2 मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. So only this partial pressure is the basic mechanism for the point number 2, that is diffusion into blood. सिंपल सी बात है बच्चों. जब मैं आपसे कहूं कि partial pressure of oxygen is much more, partial pressure of oxygen is much more in environment as compared to partial pressure of CO2, तो जाहिर सी बात है that will come or that will move inside. Higher pressure to lower pressure, higher pressure in environment, lower pressure in lungs, so it will move in, rush in. Perfect. वहां पर भी डिफ्यूजन ही था, मतलब वहां पर भी अंदर तक जाना भी पार्शियल प्रेशर का ही खेल. मैं आपको जो बता रहा हूं वो लंग्स टू ब्लड बता रहा हूं. जब आपने इनहेल किया, जैसे ही आपने इनहेल किया, व्हाट यू एक्सपेक्ट? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज और डिक्रीज इन लंग्स? Increase. When you inhale, जो अपन ने पढ़ लिया, ए वाला पार्ट अपना हो गया, जो अपन ने पढ़ लिया. So in lungs we expect the increased partial pressure of oxygen by default, obvious है. Partial pressure of oxygen increases in lungs. Perfect. So it will diffuse into blood where the pressure is less. वहां प्रेशर क्यों लेस है? क्योंकि उधर से वो CO2 चली आ रही है ना.
उधर से वो CO2 चली आ रही है, उधर से जब CO2 चली आ रही है तो इसमें ब्लड में प्रेशर ज्यादा है CO2 का, इधर पे प्रेशर ज्यादा है O2 का, सो O2 इन दिस डायरेक्शन एंड CO2 इन दिस डायरेक्शन. अग्रीड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी सिंपल. बी वाले पॉइंट को तो मुझे ज्यादा बताना ही नहीं था, लेकिन हाँ जब मैं आपको डी बताऊंगा तब मैं वापस एक बार बी पर आऊंगा. मैंने अभी बी आपको बताया. इट्स अ सिंपल पार्ट. द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन लंग्स, लेस इन ब्लड, and the partial pressure of CO2 is more in blood, less in lungs. So by default that will be exchanged. Agree, doctors? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I hope you understood B point also. Agreed? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे आपको बताना है पार्ट नंबर सी. अब मुझे आपको बताना है पार्ट नंबर सी कि ऑक्सीजन जो ट्रैवल कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है और CO2 जो ट्रैवल कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है. और इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ने की सलाह मैं दूंगा. क्लोराइड शिफ्ट आप लोगों ने थोड़ा सा क्लोराइड शिफ्ट पढ़ के रखना चाहिए. इसके बाद की कहानी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, बट यू शुड प्रिपेयर. इतना पढ़िए. और अब मैं शुरू करने वाला हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. मेरा एक पार्ट हो गया इनहेलेशन, दूसरा पार्ट हो गया डिफ्यूजन, तीसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. वो गैसेस किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा और CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होगा. O2 जो ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में और CO2 जो ट्रांसपोर्ट होगा वो बाइकार्बोनेट और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म. वो मुझे आपको बस एक्सप्लेन करना है. उसके लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के रखिए एंड प्लीज कंप्लीट इट टिल पेज नंबर 271 क्योंकि उसमें कुछ रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज हैं जो मुझे आपको बतानी है. अदरवाइज आई विल गो विद एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. एनी डाउट इन टुडेस सेशन? Any doubt in today's session? No, sir. No, sir. No, sir. Perfect. Sir, please send board work on group. Aditi Pardeshi. For sure I will share it. Because bandwidth कम हो जाती है तो मैं definitely हर image को share करता हूँ. Final call. Any doubt to anyone? सर No, sir. हाँ सानिका बोलो. सर कल के लेक्चर में हम लोगों ने मतलब डाइजेशन के क्वेश्चन में वो सोडियम और पोटेशियम का सोचा था ना, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से कौन सा एब्जॉर्ब होगा. सर तो लार्ज हाँ. इंटेस्टाइन में मतलब फीसेस का कॉन्सेंट मतलब ये होता है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसके लिए सोडियम ही इम्पोर्टेंट है ना, मतलब ये ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए. हाँ मतलब सोडियम इंपॉर्टेंट है. एक बात और मुझे अभी समझ में आई आपके बोलने के बाद कि वहां जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए एल्डोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल. हाँ बट दो एक बात अलग है कि उसका टारगेट किडनी है, बट हाँ सोडियम का हो सकता है रोल. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन सानिका? सर एक मिनट में क्वेश्चन ओपन कर. The primary active absorption in large intestine is. अच्छा, प्राइमरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन. Yes, sir. तो प्राइमरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन में और ऑप्शंस में सोडियम था, इज इट? हाँ sir. Active transport of sodium from lumen to the blood. From lumen to the blood, but it is not about the large intestine, Sanika. Then the question is not related to large intestine. वो lumen, sorry, large So intestine. question is primary absorption, active absorption process in large intestine. क्वेश्चन में लार्ज इंटेस्टाइन पूछा है उन्होंने, इज इट? हाँ ओके ओके, तो आंसर वाज गिवन सोडियम. हाँ मतलब मैंने ऐसे ही सोचा कि वहाँ पे फीसेस का वाटर रिटेंशन या फिर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए सोडियम ही, मतलब हम लोगों ने सब जगह पे सोडियम ही पढ़ा है ना, कंसंट्रेशन वगैरह चेंज करना होगा तो. बिल्कुल ठीक, वो पढ़ा है. बट डॉक्टर अपन ने एल्डोस्टेरोन और सोडियम के और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के केस में नेफ्रॉन में पढ़ा है. बट फाइन, इससे कोरिलेशन है या नहीं, लेट मी चेक. और यदि वो हो सकता है तो डेफिनेटली आंसर उस रिलेवेंस में हो भी सकता है सोडियम है. ट्रू इन दिस वे. ओके ओके सर. परफेक्ट. एनी डाउट टू एनीवन रिगार्डिंग? हाँ बोलिए. डाइजेशन का भी कोई हो तो बोलिए, 11th भी सुन लेंगे. सर प्राप्ति क्या? हाँ प्राप्ति बोलो.
So in the DC class, I have asked you the question about the growth of bones, means which was given in the exam, and we were confused in the two options like vitamin D, calcium, and vitamin A, and vitamin D, calcium, and zinc. Again, So please repeat. what will be the Please repeat the question. so which means which is necessary for the growth of bones? So we were confused in the two options, vitamin D, calcium, and vitamin A. And the second option is vitamin D, calcium, and zinc. So what will be the answer? Means I have choose zinc, but it was with vitamin A. विटामिन डी कैल्शियम वाज कॉमन, केवल एक देखना था हमें कि वो विटामिन ए है या जिंक है. इज इट? Yes, sir. Yes, sir. 12th, एनी डिस्कशन? बोन की ग्रोथ के लिए विटामिन डी, कैल्शियम, ये दोनों कॉमन पॉइंट थे. एक दिया था जिंक और एक दिया था विटामिन ए. एनीवन रेड एनीवेयर? प्रतीक, नरेश, सानिका, अनया, वैभव, सिद्धि? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जिंक होना चाहिए था और शायद मैं भी जिंक लगाता रादर विटामिन ए. बट किसी ने यदि विटामिन ए को पढ़ा हो कि हाँ वो किसी तरह से प्रीकर्सर है, तो फिर बात अलग है विटामिन डी के लिए. ओके, गॉट इट. प्राप्ति? Yes, sir. आई शेयर एन इमेज. मैं अभी तो नहीं, तुरंत मैं आपको बायोकेमिस्ट्री की रेफरेंस बुक से शेयर करता हूँ. विटामिन डी का जो सिंथेसिस होता है ना, विटामिन डी का सिंथेसिस सनलाइट में होता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और उसके लिए जो प्रीकर्सर का काम करता है, आई थिंक वो विटामिन ए वाला पार्ट है. वो मैंने बायोकेमिस्ट्री में किया है, मुझे याद आया. मैं आपको उसका इमेज ग्रुप पे शेयर करता हूँ इफ आई गॉट इट. Okay. ओके, Yes. perfect, no problem. Any more doubt to anyone? No. हाँ बोलिए. सर वो विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन है ना, तो वो ऑस्टियोब्लास्ट की फॉर्मेशन के लिए और फिर वो बोन बना. वेरी गुड. एक और पॉइंट अपने को मिल गया. इट इज फैट सॉल्युबल, तो वो विटामिन डी की मदद करता है फॉर व्हाट? ऑस्टियोब्लास्ट. बोन फॉर्मेशन के लिए. वैभव, इज इट? यस सर. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. हाँ गायत्री, बोलो. Sir, actually one more point which I found means in the uses of vitamin A, like what its deficiency causes. So skin disorders is given, and skin is responsible for synthesis of vitamin D from cholesterol. So if something happens to the skin, then the synthesis will be impaired. परफेक्ट. मतलब ओवरऑल सारे कनेक्शन जो मिल रहे हैं सारे डिस्कशन के, डॉक्टर भंडारी वो विटामिन ए को ज्यादा अप्रोप्रिएट ठहरा रहे हैं. Am I right? गायत्री, वैभव, प्राप्ति? Yes, sir. Perfect. Very good. This is the importance of science. See, this is the importance of discussion in a group. Instead of sending question me personally, it is always better to discuss here on the group so that so many angles are open. And wide angle we got it. Cyan. Understood? Yes, sir. Perfect. सर एक और बच्ची थी कोई. हाँ बोलिए. सर मैंने कल डाउट भेजे थे आपको डाइजेशन के. आपने मुझे वो डीसी नंबर पर भेज दिए? नहीं, अभी भेजते तो. तुरंत भेजिए डीसी नंबर पर, so that we'll discuss it. तुरंत भेजिए.